and there is conservation of electric charge. Charge can neither be created nor be destroyed, and it can be transferred from one body to another body. And last one was very important, that is quantization of charge. The charge on any body will be equal to integral multiple of basic charge, that is E. So you can write capital Q will be equal to plus or minus NE. And I hope yesterday I have given 6 questions for MCQs. So did you solve all the questions, bacha? Everybody? Yes, sir. Yes, sir. So we'll just discuss the questions. So question number 1, I will just read it out. How much is the charge on one electron? So don't you think it is very simple? If it is electron charge, charge should be minus, right? If it is electron, charge should be minus, and it is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. That is going to be the charge on electron, right? So it should be option A. Next one, question number 2. How many electrons are removed from a coin to have a charge of it should be, if it is minus 2 coulomb, obviously it has to be plus 2 coulomb, because when you remove electron from the coin, you will be left with protons. Then the charge on coin, obviously it is going to be plus 2 coulomb. Anyway, so in that case, you are going to use quantization of charge, that is Q is equal to plus NE, because on coin you are going to have a positive charge. Now Q is going to be the charge on coin, that is plus 2 coulomb, and that will be equal to plus N. E is 1.6 into 10 raised to minus 19. So if I don't write coulomb, it's okay, because this side also coulomb will get cancelled. So if I want to find N, then this will be going there. So it is 2 upon 1.6 into 10 raised to minus 19. So if I take this up, so it will become 10 raised to plus 90, and you will be left with 2 upon 1.6. So 2 into 1.6. If you find the value, obviously it is going to be 1.248. 1.248 into 10 raised to 19 coulomb. So it should be 1.248 into 10 raised to 19 coulomb. Otherwise, you can just write 12.48 into 10 raised to 18 coulomb. Because option 1.248 into 10 raised to 19. Is there any option which is matching with this, bacha? 248, because option is 1.28. So 1.28 cannot be the answer, because it should be 1.248. Right? So the right answer, it's going to be B. This is A, and obviously this is going to be B. But is it clear? Yes, sir. Okay, Yes, third sir. question. Yes, sir. So third question, it is a general knowledge question. Which metal is used to make almost all the electrical wires? Obviously, most of the time you will be using what? Copper wire. And the reason behind this is that because copper has got many number of free electrons. Since it has got many number of free electrons, obviously we'll be using copper, right? Next, fourth one, the charge on atom is obviously, a free atom. Yeah, a proper atom will be always electrically neutral, because number of electrons will be equal to number of protons. So it should be option C. Now, question number 5, if 5 electrons are transferred from glass rod to silk cloth, then the charge on glass rod is. So obviously, if electrons are transferred from glass rod to silk cloth, the charge on glass rod will be positive, right? And if the charge on glass rod is positive, so obviously you can use the same formula again. So Q is equal to plus Ne. So if 5 electrons are removed, then 5 protons will be excess in glass rod. So it is plus 5 into 1.6 into 10 raised to minus 19. So obviously it is going to be plus 8
into 10 raised to minus 19 coulomb. So therefore, it should be option plus 8 into 10 raised to minus 19. So it is option B. And the last one, mass of neutron is dash times the mass of electron. So obviously, I have told you, mass of electron, it is 9.11 into 10 raised to minus 31 kg. Mass of proton is 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. Mass of neutron, it is 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. Now, I have told you the relation between this, that is mass of electron, mass of proton, it is almost to 2000 times of mass of electron, right? So mass of proton and neutron, it is very almost same. So if mass of proton and electron has got this relation, then the mass of neutron should be equivalent to 2000 times the mass of electron, right? This is approximation. But if you want exact value, then it is very close to 2000. So this 1890 mass of electron. So here equivalent to, here it will be equal to, right? So it is very close to 2000, and there is only one option which is very close to 2000. That is 1890. So it is option B. Option B. But is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, fine. Fine. So today you will get into, because you know inside the atom what we have. Definitely we have got pen, P for proton, E for electron, and N for neutron. Now how it is aligned, that we will see, right? So first you will get into atomic structure. So we'll get into atomic structure. And when it comes to atomic structure, what I will do, I will consider copper atom, right? That is Cu, atom. Now, can anybody tell me, Bacha, what is the atomic number of copper? Bacha, atomic number of copper? 6. 6. Bacha, is it 6? 29. 29. Very good. So it is 29. It means if it is 29 in first orbit, if it is 29, then obviously in first orbit, you're going to have 2 electrons. Second, you're going to have 8 electrons. Third, you're going to have 18 electrons. And last, you're going to have 1 electron, right? So it's very true, it has got 29 number of electrons. Your atomic number is 29. So in first orbit, you're going to have 1, 2 electron, then 8, then 18. And in outermost orbit, it is going to be 1 electron, right? So basically, these all are orbits. First orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit. Now I will divide this orbit into 2 types. One, this 3. Obviously, it will be called inner orbits. I can put in this way. So this will be inner orbits. Okay. This is inner orbit. And this one, obviously, it is going to be outermost orbit. And obviously, there will be one outermost orbit. Inner orbits, you can have many. Right? So I repeat. So here you're going to have 4 orbits. Now these 4 orbits, they are divided into 2 types. One is inner orbits and another is outermost orbit. Right? Now this inner orbits, obviously the electrons which are in inner orbit, they are very close to the nucleus. I mean the distance from nucleus and the electron is less. And you know that if the distance is less, obviously the electrostatic force of attraction between electron and neutron, nucleus,
it is going to be strong, because the charge on nucleus, as as we have discussed in the last lecture, it is going to be positive, and the charge on electron, it is going to be negative. So obviously there will be force of attraction. Since distance is less, so the force of attraction will be strong here. I mean, the force will be dominant here. But on the other hand, if I consider electron which are in the outermost orbit, so obviously the value of R will be more, right? So distance will be more, so the force will be less, right? So I can say the electrostatic force of attraction will be weak here, and of course here it is going to be strong. So the force will be strong here, and here it will be weak. It means the electrons are here, the electrons which are in inner orbits, they are strongly bound to the nucleus. They are strongly bound to the nucleus. Right? But is it clear up to this much? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. They are strongly bound to the nucleus, and on the second case, force is weak. So obviously they are weakly bound to the nucleus. So the electrons which are in the outermost orbits, they are weakly bound to the nucleus. So what do you mean by that? The meaning is very simple. It is very tough to remove electrons from the inner orbits. It is very easy to remove electrons from the outermost orbit. Fine. So now if I get into the structure of atom on the basis of this, so at center you're going to have nucleus. This is going to be the nucleus which will be at the center, and the charge will be positive because it has got proton as well as neutrons. So this is nucleus which will be positive. Then around this, obviously you've got electron which will be revolving in its own atomic orbit. So you got first orbit, then second orbit, then third orbit. Right? Now you got last outermost orbit. So this is going to be the structure, right? So nucleus will be exactly at the center. Now, as far as copper atom is concerned, so obviously you're going to have two electrons in the outermost orbit. Sorry, not outermost orbit, that is first orbit. You're going to have two electrons. And second, obviously you're going to have 8 electrons. 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4. And the third orbit, obviously you're going to have 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18. And last one, obviously you're going to have 1 electron. Right? So we'll be having 1 electron here. Fine. Now, as I told, the electrons which are in inner orbits, they are close to the nucleus. So definitely the force of attraction will be strong. Therefore, nucleus along with inner orbits. I repeat, nucleus along with inner orbits, it is called core of the atom. So, I mean, the region behind, inside this red line. So obviously region inside this red line will have nucleus and inner orbit electrons, right? So this will be called as, this is called core of atom. Why it is called core of atom? Because it is very tough to remove electrons from the inner orbits, right? And the electron which are in the outermost orbit, obviously they are easy to remove. So I repeat, nucleus plus inner orbits will be called as core of atom. It's called core of atom. Now, one more thing, when it comes to outermost orbit, we know that this orbit is called as valence orbit.
the outermost orbit will be called as valence orbit, right? And the electrons which are in outermost orbit, yes, they are called valence electrons. Valence electron, right? So I repeat, the outermost orbit will be called as valence orbit, and the electrons which are in outermost orbit will be called as valence electrons. Which are clear up to this much? इधर तक सबको समझ? Okay. Yes, sir. Sir. Yes, sir. फाइन, वेरी गुड बच्चा। अभी ध्यान से सुनो, अभी कौन सा भी एटम हम लोग किधर भी रखेंगे, मतलब एक रूम पे रखेंगे या सराउंडिंग पे रखेंगे, तो एटम क्या करता है, वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, राइट? मैं फिर से बता रहा हूं, सपोज से एटम को मैंने रख दिया सराउंडिंग में, राइट? आई हैव केप्ट दिस इन सराउंडिंग। सो ऑब्वियसली सराउंडिंग में ऑब्वियसली टेम्परेचर एटम से ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली ये एटम क्या करता है बच्चा, सराउंडिंग से हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। ये एटम का प्रॉपर्टी है। सो इट विल ऑब्जर्व हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। आई रिपीट, इफ एटम इज प्लेस्ड इन सराउंडिंग and what the atom will do, it will absorb heat energy from the surrounding. अभी क्वेश्चन ये है, ये जो हीट एनर्जी जो ऑब्जर्व किया जाएगा उसको एटम कैसे यूज करेगा, राइट? बच्चा जितना भी हीट एनर्जी वो ऑब्जर्व करेगा उसको दो तरीके से यूज किया जाएगा एटम, राइट? सो आई विल राइट हियर, सो द हीट एनर्जी को हम लोग थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। सो हीट एनर्जी absorbed from surrounding is used in two ways, right? दो वे से यूज किया जाएगा। नंबर वन, बच्चा हमेशा एटम एक पेरेंट जैसा है, राइट? एंड उसका जो इलेक्ट्रॉन है, इट इज लाइक बच्चा है, मतलब किड जैसा है उसका, राइट? आई वुड से इलेक्ट्रॉन्स आर चिल्ड्रंस ऑफ एटम। तो हमेशा पेरेंट का क्या टेंडेंसी होता है, पहला वो बच्चों को देता है एनर्जी, राइट? सो इधर भी एटम जब एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो पहला वो एनर्जी आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को देगा। एंड आपको पता है क्यों इनर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा? क्योंकि उनको दे विल नॉट कम आउट ऑफ द एटम बिकॉज दे आर स्ट्रांगली बॉन्ड टू द न्यूक्लियस, राइट? सो अल्टीमेटली जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स है वो पहला एनर्जी यूज करेगा, राइट? सो व्हाट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन विल डू, सो यूजिंग दिस एनर्जी, दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इधर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो ऑब्वियसली यू कैन हैव मोर इलेक्ट्रॉन आल्सो। सो I'll write valence electrons using, of course, using this energy, valence electrons detach themselves from atom। मतलब यूजिंग दिस एनर्जी, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहा है वो एटम से बाहर आ जाएगा, राइट? सो एटम से बाहर आके ऑब्वियसली कंडक्टर में ही रहेगा। नो एटम्स में बाहर होके अब ये क्या होगा, मतलब एटम से बाहर आ गया तो कंडक्टर का अंदर वो किधर भी जा सकता है, राइट? सो मतलब मैं फिर से बता रहा हूं, एटम से बाहर आना डज नॉट मीन दैट कंडक्टर से बाहर आ गया। एटम से बाहर आना मतलब ऑब्वियसली वो कंडक्टर में ही रहेगा, बट कंडक्टर के अंदर वो इधर उधर जा सकता है। इसके लिए उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एंड यही इलेक्ट्रॉन करंट को प्रोड्यूस करता है या करंट को कैरी करता है, इसके लिए इसको हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। वी कॉल इट एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली जो करंट कैरी करता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, तो अंदर का इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं करता। इसके लिए इसको हम लोग, सिंस इट विल कैरी करंट, therefore it is called as conduction electron. Yeah, it will help in conduction of current, therefore it will be called as conduction electron. So I hope idhar tak clear ho gaya. So themselves from atom and it becomes free electrons. Valence electrons detach themselves from atom and it will become free electrons. It will become free electrons.
बच्चे फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? सो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है एटम से वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स बाहर आके फ्री हो जाएगा। बच्चे ये पॉइंट क्लियर है? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अभी ये इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद ऑब्वियसली और एनर्जी थोड़ा बच गया, तो ऑब्वियसली एटम खुद एनर्जी यूज करेगा। सो व्हाट द एटम विल डू, एटम जो भी एनर्जी अभी इन केस बचा तो उसको एटम यूज करेगा, और एटम उसको कैसे यूज करेगा? यूजिंग दिस एनर्जी एटम विल सेट इटसेल्फ इनटू वाइब्रेशन। मतलब ये एनर्जी लेके एटम क्या करेगा? वाइब्रेशन शुरू करेगा, मतलब ऐसा ऐसा वाइब्रेट होना शुरू करेगा, राइट? एंड ये जो वाइब्रेशन है उसको हम लोग थर्मल वाइब्रेशन बोलते हैं, कॉल्ड थर्मल वाइब्रेशन, क्योंकि ये थर्मल एनर्जी का वजह से होता है, इसके लिए हम लोग उसको थर्मल वाइब्रेशन बोलते हैं, राइट? एंड ये वाइब्रेशन का वजह से ही देखो, आपने किसी मेटल को हीट किया, डोंट यू थिंक वो एक्सपांड होता है? बच्चा देखा है आपने, ऑब्जर्व किया है? जब आपने एक आयरन रॉड को हीट किया तो एक्सपांड होता है, किसी मटेरियल को आपने गर्म किया तो क्या होगा? एक्सपांड होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि एटम्स उसका अंदर वाइब्रेट करना शुरू करता है। जब एटम वाइब्रेट करता है तो अल्टीमेटली दो एटम के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम होएगा कि बढ़ेगा बच्चा? बढ़ेगा। 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 तो हर एक एटम के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सब्सटेंस क्या होगा बच्चा? एक्सपांड होता है, एक्सपांड। उसको हम लोग थर्मल एक्सपांशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? थर्मल एक्सपांशन। सो अभी आपको इधर क्या समझना है कि ये समझना है आपको, हर एक एटम के पास क्या होता है बच्चा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। हर एक एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हीट एनर्जी को सराउंडिंग से ऑब्जर्व करता है, राइट? So I can write here, of course, point A है, atom has free electrons because it absorbs heat energy from surrounding, absorbs heat energy from surrounding. बच्चा, is it clear? Yes, sir. मतलब Yes, हर एक Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो ऑब्जर्व करेगा हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। आई होप द एंटायर डायग्राम एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? Yes, sir. ओके Yes. ओके बच्चा, कंप्लीट करो इसको।
अच्छा finished? No, sir. ओके बच्चा कॉपर से भी बेस्ट मेटल कौन सा रहेगा कंडक्शन के लिए? कॉपर से भी बेटर? कॉपर तो यूज करते हैं, उससे भी बेटर कौन सा रहेगा बच्चा इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए? उससे भी बेटर एल्यूमिनियम। Aluminium. एल्यूमिनियम। बच्चा सिल्वर है ना, क्योंकि सपोज मैंने सिल्वर लिया, सिल्वर सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 है। 47 मतलब 2 8 18 18 1। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इधर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इधर भी एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और दूर है, राइट? तो किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सकता है, सिल्वर में कि कॉपर में बच्चा? सिल्वर में। सिल्वर ऑब्वियसली सिल्वर में, क्योंकि Silver आउटर में। मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है। तो बहुत दूर है तो ऑब्वियसली हम लोग को इजी कौन सा रहेगा, बेटर कौन सा रहेगा? सिल्वर। बट प्रॉब्लम क्या है, सिल्वर थोड़ा कॉस्टली है कॉपर से। सो सिल्वर कॉस्टली है, राइट? इसके लिए हम लोग कॉपर यूज करते हैं, बट बेटर ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी सिल्वर है, याद रखना बच्चा। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, Okay. sir. बच्चा फिनिश्ड? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. सबको हो गया, राइट? Yes, sir. ओके चलो, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। Sir. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल डिटैच देमसेल्फ फ्रॉम एटम एंड इट विल बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी बात करेंगे सेकंड पॉइंट का। एटम विल सेट इटसेल्फ इनटू वाइब्रेशन called thermal vibration, and of course this thermal vibration will be the concept of thermal expansion. So second part discuss करेंगे।
right? Fine. So next one, we will be dealing with thermal vibration. Thermal vibration. Vibration. ये भी important है क्योंकि ये बताता है कि एटम वाइब्रेट होते रहता है बिकॉज ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर. सो मान लो बच्चा ये एटम है, दिस इज एटम, एंड ये जो लाइन दिख रहा है ये उसका मीन पोजीशन. मीन पोजीशन, राइट? अभी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है तो ऑब्वियसली एटम वाइब्रेट नहीं होते रहेगा, तो एटम ये लाइन पे रहेगा, मतलब ये पोजीशन पे रहेगा. उसको हम लोग एक तो मीन पोजीशन बोलेंगे या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे. So one we will call it as mean position, otherwise it is called as extreme position. अभी क्या होगा, जैसे ही हम लोग उसको एटम को या सब्सटेंस को एक जगह रखेंगे जिधर सराउंडिंग टेम्परेचर वो एटम का या वो सब्सटेंस का टेम्परेचर से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये जो एटम सराउंडिंग का टेम्परेचर को ऑब्जर्व करेगा. पहले जितना भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री होगा. उसके बाद एटम क्या करेगा, वो वाइब्रेशन शुरू करेगा. Vibration in the sense it will move up and down, yeah, it will perform to and fro motion from its main position. मतलब ऊपर जाएगा, नीचे मेन पोजीशन में वापस आएगा, देन नीचे जाएगा, फिर से ऊपर आएगा, then it starts vibrating like this. ये जो वाइब्रेशन है इसको हम लोग थर्मल वाइब्रेशन बोलते हैं, राइट? सो इसमें दो कॉन्सेप्ट, मतलब इट डज नॉट मीन दैट वाइब्रेट होके इधर उधर जाएगा, नहीं, उधर ही रहेगा बट वाइब्रेट होते रहेगा, राइट? अब ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस एटम जाता है ऊपर या नीचे फ्रॉम मीन पोजीशन, उसको हम लोग रेफर करते हैं एम्पलीट्यूड. दिस इज ए. सो आई कैन डिफाइन वन टर्म हियर, दैट इज ए. ऑब्वियसली इट इज एम्पलीट्यूड, एंड एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम displacement of atom from its mean position, is called amplitude, तो ऑब्वियसली ये तो क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट जो है बच्चा, एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज टाइम पीरियड, राइट? अभी टाइम पीरियड मतलब क्या होगा, इसको हम लोग कैपिटल टी डिनोट करते हैं. सो अभी बच्चा देखो, इधर एटम है, ऊपर जाएगा, मीन पे आएगा, नीचे आएगा, मीन पे आएगा, इसको वन वाइब्रेशन बोलते हैं. मैं फिर से बता रहा हूं बच्चा, एटम इधर है मीन पे, ऊपर गया, नीचे आया मीन पे, देन नीचे गया, फिर से मीन पे आया, तो ये वन वाइब्रेशन. वन मोर टाइम, ये मीन पोजीशन, ऊपर गया, मीन पे आया, नीचे गया, देन फिर से मीन पे आया, तो ये वन वाइब्रेशन है. ऊपर गया, मीन पे आया, नीचे गया, फिर से मीन पे आया, दिस इज वन वाइब्रेशन. अभी इसके लिए जो टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं. सो वी कॉल इट एज टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड इज नथिंग बट द टाइम रिक्वायर्ड, the time required या time taken by atom to perform one vibration or oscillation is called time period. Is called time period, right? अभी आपको इधर क्या और एक कॉन्सेप्ट जानना है. फॉर ए गिवन मटेरियल या गिवन सब्सटेंस, राइट? एक पर्टिकुलर सब्सटेंस आपने लिया है तो टाइम पीरियड हमेशा वो सब्सटेंस के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा.
टाइम पीरियड फॉर ए गिवन सब्सटेंस ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल आपने कॉपर वायर लिया, उसका जो एटम का जो टाइम पीरियड किसी टेम्परेचर में वो कांस्टेंट रहेगा। आयरन का लिया तो उसका जो टाइम पीरियड है वो कॉपर से अलग होगा, बट उसके लिए वो कांस्टेंट होगा, राइट। मतलब जो भी मतलब टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, वो जो टाइम पीरियड है वो फॉर ए गिवन सब्सटेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो याद रखना टाइम पीरियड कांस्टेंट है, राइट। अभी एक जो स्पीड से वो वाइब्रेट करता है, ऊपर नीचे वो जो स्पीड से जाता है, हम लोग उसको स्पीड ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। द स्पीड at which it moves up and down will be called as speed of vibration. The speed at which atoms atom performs vibration is called speed of vibration. Speed of vibration. बच्चा कितना स्पीड से ऊपर नीचे जा रहा है तो उसको भी एक स्पीड होगा ना। ऊपर स्लोली जा रहा है तो स्पीड कम है, फास्ट जा रहा है तो स्पीड ज्यादा है। सो अल्टीमेटली ये स्पीड ऑफ वाइब्रेशन हम लोग ले लेंगे स्मॉल v, राइट। सो मैंने 3 टर्म बताया, एक एम्पलीट्यूड और एक बोला टाइम पीरियड और एक बोला स्पीड ऑफ वाइब्रेशन, राइट। अभी बच्चा ध्यान से सुनो, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर या एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड of vibration, it is directly proportional to temperature. So मतलब टेम्परेचर ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है, राइट। या टेम्परेचर कम है तो ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कम, राइट। अभी मैंने बोला कि टेम्परेचर ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा, मतलब ये ऊपर बहुत ऊपर जाएगा नीचे आएगा, राइट। बट आपको पता कर ये रहना कि टाइम पीरियड एक पर्टिकुलर एटम के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब जब उसको बहुत ऊपर जाना है, देन इधर आके बहुत नीचे जाना है, तो ऑब्वियसली उसका स्पीड ऑफ वाइब्रेशन जो है, स्पीड ऑफ वाइब्रेशन मतलब टेम्परेचर ज्यादा। बच्चा मैं इधर टी लिखूंगा तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे क्योंकि टी इधर टाइम पीरियड है, तो मैं टेम्परेचर ही लिखता हूं, दैट इज बेटर है क्योंकि टी टाइम पीरियड है। तो दिस इज टेम्परेचर इज स्मॉल, एम्पलीट्यूड विल बी स्मॉल, राइट। अभी कहने का ये मतलब है टेम्परेचर ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो आपको पता है उसको ज्यादा ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, बट उसको जो टाइम इधर लगता है वही टाइम इधर कर रखना पड़ेगा। मतलब इधर दोनों में टाइम पीरियड क्या है, सेम है, क्योंकि एटम फॉर अ गिवन सब्सटेंस टाइम पीरियड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब इधर स्पीड ऑफ वाइब्रेशन जो है, ये जो है ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, राइट। टेम्परेचर ज्यादा है तो एटम का एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा, एम्पलीट्यूड जाएगा तो स्पीड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा रहेगा। टेम्परेचर कम है तो एम्पलीट्यूड कम है, तो एम्पलीट्यूड कम है तो ऑब्वियसली स्पीड ऑफ वाइब्रेशन क्या रहेगा, कम रहेगा, राइट। मतलब जब उसको ऊपर नीचे ज्यादा जाना है तो फास्ट जाएगा, देन ऊपर नीचे कम जाना है तो स्लोली ऊपर नीचे जाएगा, राइट। तो उसका स्पीड ऑफ वाइब्रेशन क्या रहेगा, कम रहेगा। फर्स्ट केस में स्पीड ऑफ वाइब्रेशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि एक एटम के लिए हर टेम्परेचर में टाइम पीरियड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टाइम पीरियड विल रिमेन कांस्टेंट फॉर एनी टेम्परेचर, फॉर एनी टेम्परेचर, राइट। किसी टेम्परेचर में उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बच्चा इज इट वेरी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बच्चा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एटम ऑब्वियसली सब्सटेंस के अंदर एटम क्या करता है, वाइब्रेट होते रहता है। सो ऑब्वियसली ये वाइब्रेशन में जब इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाता है इलेक्ट्रॉन को, सो कोलाइजन होता है, कोलिजन। सो बेसिकली ये जो एटम का वाइब्रेशन ही आपको रेसिस्टेंस देता है। हम लोग बोलते हैं ना करंट को, फ्लो को कंडक्टर अपोज करता है, तो कंडक्टर में एटम एक्चुअली अपोज करता है क्योंकि एटम वाइब्रेशन करते रहता है। तो वाइब्रेशन करते रहेगा तो मूविंग इलेक्ट्रॉन को वो जाने नहीं देगा, बिकॉज देयर विल बी कोलिजन, राइट। सो ये बेसिक रीजन है रेसिस्टेंस का। सो इसको कंप्लीट कर लो बच्चा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर आपने जो एटम का स्ट्रेट लाइन है उसका पोजीशन नाम क्या है? क्या बोल रहे हो बच्चा?
आपने जो एटम से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है उसका नाम मीन किधर आ पोजीशन रहा लिखा है, मीन पोजीशन लिखा है, मीन मीन पोजीशन। पोजीशन। हाँ, एक तो मीन पोजीशन लिखो, नहीं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन लिखो। मतलब जब एटम रेस्ट पे है तो वही लाइन पे रहेगा। एंड कंक्लूजन ये भी दे सकते हैं, जैसा मैंने इधर लिखा है एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ स्पीड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो स्पीड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा है, टेम्परेचर कम है तो एम्पलीट्यूड कम है तो स्पीड ऑफ वाइब्रेशन भी कम है। बच्चा फिनिश्ड। रब कर दूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चा, ओके ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक चार्ज के बारे में पढ़ा, देन एटम न्यूट्रल है करके पढ़ा, देन एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है पढ़ा,
राइट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, बेसिक्स तो हम लोग को ऑलरेडी ऑलमोस्ट समझ में आ गया है, राइट, जितना मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग करंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग ने ये पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। मतलब जब भी करंट मूव होता है, राइट, सो करंट प्रोड्यूस होता है, राइट। सो उसका रेफरेंस में हम लोग क्या करेंगे, देखो, विल कंसिडर ए मेटालिक कंडक्टर। सो कंसिडर ए मेटालिक कंडक्टर। सो आप चाहे तो मान लो कि कॉपर है, क्योंकि कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर, सो हम लोग कॉपर कंडक्टर ले लेंगे, राइट। अभी बच्चे जो कॉपर मेटालिक कंडक्टर है उसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम, राइट, मैं ले रहा हूं कैपिटल वी, राइट, एंड उसका वॉल्यूम रख रहा हूं 1 cc। 1 cc अच्छा, 1 cc क्या होता है? 1 cc ऑब्वियसली 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 cc बोलते हैं, राइट। बट हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर होता है। जैसा कि ऐसा लिख सकता हूं, देखो, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली 1 मीटर इज 10⁻² सेंटीमीटर है, तो 10⁻² वो साइड में गया, तो आपको 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻² मीटर मिलेगा। तो बट इधर 10⁻1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो दोनों साइड क्यूब लेना पड़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑब्वियसली 10⁻⁻6 मीटर क्यूब होगा। तो बेसिकली ये 10⁻⁻6 मीटर क्यूब है। तो आप समझ सकते हैं कि जो वॉल्यूम का मैं बात कर रहा हूं, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। आई रिपीट, मैं जो वॉल्यूम का बात कर रहा हूं एकदम छोटा है, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब है, राइट। तो अज्यूम करो ये वॉल्यूम है, आई मीन क्यूबॉइड है वो, बिकॉज 1 सेंटीमीटर मतलब आप समझ सकते हैं लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर है, एंड हाइट भी 1 सेंटीमीटर। तो आप विजुअलाइज कर सकते हो कितना छोटा सा क्यूब का बात कर रहा है, या क्यूबॉइड का बात कर, राइट। सो दिस विल बी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, एंड ये भी 1 सेंटीमीटर। ये आपका ब्लॉक है मेटालिक कंडक्टर, राइट। अभी इसको हम लोग ने क्या किया है, रूम टेम्परेचर पे रखा। बच्चा रूम टेम्परेचर कितना होता है बच्चा? रूम टेम्परेचर कितना होता है रफली? बताओ बच्चा, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा। हाँ, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 97. 32। कितना बच्चा? सो रफली बच्चा 25 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस है, एंड इंडिया में तो ऑब्वियसली 26 या 27 का बीच में रहता है। सो इसके लिए हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम 27 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, राइट। सो रूम टेम्परेचर इट विल बी 27 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने इसको सराउंडिंग पे रखा है, सराउंडिंग जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली सराउंडिंग से हीट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, राइट। चलो थोड़ा नीचे रख देते हैं सराउंडिंग। सो मैंने बोला कि इसका 27 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, एंड ये हीट एनर्जीज को ऑब्जर्व करेगा, एंड ऑब्वियसली ये एनर्जी लेके एटम से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा, राइट। सो यू आर गोइंग टू हैव मेनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारा एटम्स होगा, एंड हर एक एटम सपोज एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन देगा, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होगा, राइट। सो दीस आर नॉट एटम्स, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अभी सपोज मैंने एक यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके बारे में बात करूं, सो आई कैन डिफाइन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे N से। इसको हम लोग
पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका वैल्यू लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, राइट। सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इसमें से एक छोटा सा यूनिट वॉल्यूम लिया, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा वो n होता है, राइट। अब इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे रखा, सो टेम्परेचर का हिसाब से फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेरी होता है, राइट। तो इट इज मेटालिक कंडक्टर, उसका रेंज होता है, क्योंकि कॉपर में सिल्वर में सबसे ज्यादा होगा, बाकी सबके लिए थोड़ा कम हो सकता है, बट इट विल बी अराउंड 10⁻26 per meter cube to 10⁻29 per meter cube तक हो, राइट। सो 26 बेसिकली 25 का ऊपर होता है, बट मैंने 26 लिया क्योंकि मैंने कॉपर मान लिया है। कॉपर का टू बी वेरी प्रिसाइज 10⁻29 तक आता है। कितना आता है बच्चे? 10⁻26 to 29 रेंज है, बट कॉपर के लिए यूजुअली 28 तक आता है, 28, बट इट इज 26 और 29 है, सो इट्स फाइन। So obviously 10⁻26 or 29, it is not a small number. Obviously they are big numbers, right? Right, बच्चा? Yes, sir. Okay, Yes, so एक छोटा सा वॉल्यूम रूम टेम्परेचर पे रखा, तो उसका अंदर यूनिट वॉल्यूम में इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब ये फ्री है तो ऑब्वियसली ये स्टेशनरी नहीं होगा, हाँ ना बच्चा? विल इट बी स्टेशनरी? बच्चा चुप एक जगह रुका रहेगा कि इधर उधर मूव होते रहेगा? बच्चा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, विल इट बी स्टेशनरी या विल इट बी मूविंग? मूव होता रहेगा। It will be moving. Moving, sir. Moving. ऑब्वियसली वो मूव होता रहेगा, एंड जो स्पीड से वो मूव होता है उसको हम लोग थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी, राइट। अभी आपको इतना तो पता चला होगा कि थर्मल वेलोसिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर का वजह से मूव हो रहे हैं, राइट। एंड दे आर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑलमोस्ट 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। कितना बच्चा? 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। सो ऑब्वियसली 10⁻5 मीटर पर सेकेंड इज अ ट्रेमेंडस वेलोसिटी, राइट। सो आप विजुअलाइज कर सकते हो कोई बंदा 100 मीटर पर सेकेंड भाग रहा है, राइट, तो आपको तो ऑब्वियसली ऐसा लगेगा कि बहुत स्पीड से भाग रहा है, राइट। 100 मीटर सेकेंड, ये तो कितना स्पीड से जा रहा है बच्चा? 10⁻5 मीटर पर सेकेंड है। तो यू मतलब आप तो एक तो इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते हैं, इनकेस देख सकते तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि उसका मोशन क्या है, उतना स्पीड, राइट, इतना स्पीड से वो मूव कर रहा है, राइट। तो अभी देखो आपको तो सिचुएशन समझ में आया, एक ब्लॉक है, वॉल्यूम छोटा है, रूम टेम्परेचर पे रखा है, इसके अंदर इतना इलेक्ट्रॉन्स है और इतना स्पीड से जा रहे हैं। सो डोंट यू थिंक, हम लोग ने पढ़ा है जब भी इलेक्ट्रॉन मूव होता है, आई रिपीट, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो डेफिनेटली करंट प्रोड्यूस होता है। तो बच्चा बताओ इधर करंट प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा? सो विल देयर बी एनी करंट या विल बच्चा इधर कुछ करंट प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा? हाँ, जो भी बच्चा अनम्यूट किया है यू कैन स्पीक। सो विल देयर बी एनी करंट? बच्चा आपको क्वेश्चन समझ में आया सबको? बच्चा इज द क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. There will be current. There will be current. Okay, there will be current. So everybody will agree with this कि there will be current? बच्चा दिव्या, will there be current? दिव्या Yes, है, sir. आयुष है। अच्छा सुनो बच्चा, अभी सुनो, अभी आप जो भी रूम पे बैठे हो, so obviously उधर एक डोर होगा, डोर का एक हैंडल होगा, हैंडल मेटल से बनाया होगा, एंड ऑब्वियसली वो मेटल रूम टेम्परेचर पे है, क्योंकि एसी ऑन ऐसा सब किया है तो ऑब्वियसली थोड़ा टेम्परेचर वेरिएशन हो सकता है, बराबर है।
बच्चा वो जो हैंडल आप टच किया तो आपको शॉक लगता है क्या? नो No, सर। sir. नहीं है ना बच्चा। No, When there sir. is No, sir. when there is no shock मतलब करंट नहीं बन रहा है बच्चा, राइट? तो मतलब इतना सिनेरियो है, इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स इतना स्पीड से जा रहा है, तो ऑब्वियसली करंट बिल्कुल नहीं बन रहा है। सो देयर इज नो करंट, जीरो करंट, राइट? मतलब आप बोलेंगे सर कुछ तो करंट बनता होगा जो हम लोग आइडेंटिफाई या उसको फील नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो करंट, राइट? सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो हैंडल है रूम पे वो मेटल से बनाया है, राइट? या कुछ मेटल का आप आयरन बॉक्स लो, सो ऑब्वियसली वो तो मेटल का ही बनाया होगा, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो उसको आप टच करेंगे, प्रोवाइडेड इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सॉकेट, सो देयर विल बी नो शॉक या देयर विल बी नो करंट, राइट? बच्चा अभी रीजन बताओ, आप सोच के रीजन बताना क्यों करंट नहीं है। करंट तो 101% नहीं है, बट क्यों नहीं है? एंड आई नो दैट यू नो रीजन, मेरे को पता है कि आपको रीजन पता है कि क्यों करंट नहीं है, तो आपको खाली थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने 10th में 101% सुना ही होगा कि करंट नहीं बनेगा। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन से मूव करने के लिए कोई फोर्स नहीं है। बट बच्चा मैं उसको फोर्स करूंगा तो वो मूव होगा, राइट? तो इधर तो बिना फोर्स करके वो मूव हो रहा है बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी, राइट? हीट एनर्जी इधर फोर्स दे रहा है, उसके लिए वो मूव हो रहा है, तो करंट तो बनना चाहिए ना बच्चा। But there is no charge into it. फिर से बोलो, फिर से बोलो। But there is no charge into it. देयर इज नो There is no charge into it. एनी अदर आंसर बच्चा? दिव्य यू आर नॉट ऑडिबल बच्चा, सुना ही नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हो। एनी अदर आंसर बच्चा? अमित है, अंकी, अनिका है, आर्या है, यू कैन आंसर। आयुष है, गायत्री, हर्ष, सागर, संदीप। बच्चा व्हाई देयर इज नो करंट? बच्चा रीजन एकदम सिंपल है। डोंट यू थिंक बच्चे जो इलेक्ट्रॉन्स है, मेरे को ये बताओ, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? No, sir. बच्चे नो इज इट नो सर। No, sir. No, डायरेक्शन? sir. नो, स्टोरी खत्म हो गया ना बच्चा। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, जितना इलेक्ट्रॉन्स बच्चा ऊपर जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गया तो 5 नीचे भी जाता है, 5 लेफ्ट पे गया तो 5 राइट पे जाता है। सो अल्टीमेटली नेट वेलोसिटी जो है, नेट वेलोसिटी, जब मैं बात करूंगा नेट वेलोसिटी का, ऑब्वियसली नेट वेलोसिटी जो है या एवरेज वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स का, वो तो जीरो है ना बच्चा, राइट? तो रीजन ये है, देयर इज नो करंट प्रोड्यूस बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, है ना बच्चे? ये तो पढ़ा है ना अपने 10th में। सो देयर इज नो करंट, देयर इज नो करंट because electrons are moving in random direction, और ये भी बोल सकता हूं, और in all possible directions, राइट? तो ऑब्वियसली ऊपर जितना जाएगा उससे जो करंट बनता है, जो नीचे जा रहा है उससे न्यूट्रलाइज होता है, जो लेफ्ट में जाता है उसका जो करंट राइट से न्यूट्रलाइज होता है। सो अल्टीमेटली नेट करंट क्या होगा बच्चा? जीरो होता है। मतलब हमारे पास इतना इलेक्ट्रॉन्स है, फास्ट जा रहा है, वो सब है, बट करंट तो बिल्कुल नहीं बनेगा। इसके लिए नहीं बनेगा क्योंकि नेट करंट क्या होगा बच्चा? जीरो होगा। Is it clear? Everybody followed up to this much? Yes, sir. यस सर। Yes. हाँ, तो बच्चे Yes, sir. कंप्लीट करो। मतलब करंट प्रोड्यूस करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, एंड एक डायरेक्शन में मूव करना है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, राइट? Yes, sir. ओके।